Okay, so hello and a very good afternoon everyone. আজি আপোনালোকৰ 4th of November হয় আৰু আজি মানে ৰাতিপুৱা যোনটো ক্লাছ আছিলে আপোনালোকে জানে সেইটো আমাৰ একচুয়ালি ডিউ টু সাম টেকনিক্যাল প্ৰবলেম মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি অলপ প্ৰবলেম হৈছিলে আমাৰ সেইটো কাৰণে আমি ক্লাছখিনি মানে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলো সো সেই কাৰণে মই আজি এই ক্লাছটো যোনটো হয় ইয়াত একচুয়ালি মই তিনটা ক্লাছ লম আজি এটা যোনটো আপোনালোকৰ হয় জিঅ'মৰ্ফোলজি এটা টপিক আছিলে কনভাৰ্জেন্স এণ্ড ডাইভাৰ্জেন্স তাৰ ডাইভাৰ্জেন্স পাৰ্টটো বাছি আছিলে আমাৰ ঠিক আছে আৰু জিঅ'মৰ্ফোলজিত মই আজি মানে ভাবিছিলো কাৰণ ডাইভাৰ্জেন্সটো সৰু টপিক হয় তিনটা স্লাইডতে শেষ হৈ যায় এই যোনখিনি টপিক হয় মাউণ্টেইনছ সো এইটো এটা পাৰ্ট আছে আমাৰ জিঅ'মৰ্ফোলজি এই পাৰ্টটো পিছত আৰু ধৰক 3-4খন মান থাকিব আৰু জিঅ'মৰ্ফোলজি কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি তেনেকৈ ওশেনোগ্ৰাফি তাৰপিছত ক্লাইমেটলজি চাম ওকে তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকে আৰু এটা মই সেপাৰেট লেকচাৰ্ছ লৈ আহিম সো মই প্ৰথম যোনটো এতিয়া এই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছো ইয়াত মই ডাইভাৰ্জেন্সৰ কাৰণে কৰি আছো তাৰপিছত মই আৰু এটা আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিং দিম যোনটো মাউণ্টেইনছ যোনখিনি হয় ফল্ড এণ্ড ফল্টছ কি হয় এইবিলাক আমি চাম আৰু আসাম পলিটি আমি যোনটো পাৰ্ট হয় আমি এটা কন্টিনিউ কৰি আছিলো গভৰ্ণৰ যোনটো পাৰ্ট হয় আমি এটা মই ৰেকৰ্ডেটো দিছিলো এটা অফলাইন সেশন দিছিলো আপোনালোকক তাৰ উপৰিও আজি যোনটো হয় মই ইয়াত চিফ মিনিষ্টাৰৰ যোনটো টপিক হয় সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ঠিক আছে সো এইকেইটা আমি আজি কমপ্লিট কৰিম সো তিনটা ভিডিঅ' থাকিব আপোনালোকৰ কাইণ্ডলি তিনটাই ভালকে চাব ঠিক আছে সো কনভাৰ্জেন্সৰ মই এটা সামাৰী আপোনালোকক দিছিলো সামাৰীটো যদি চাই সামাৰীটো মই জাষ্ট ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক কৈ দিছো পটাপট ঠিক আছে সো আইল বিগিন দ্য স্লাইড শ্ব হিয়াৰ Okay, so আমি কনভাৰ্জেন্সৰ কথা পঢ়িছিলো যে কনভাৰ্জেন্স কোড হয় আপোনালোকৰ কনভাৰ্জেন্স জেনাৰেলি কোড হয় আপোনালোকৰ এটা জোন অফ সাবডাকশন হয় দ্যাট মিন্স আপোনালোকৰ দুখন প্লেটৰ মাজত ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকৰ কি হয় জোন অফ সাবডাকশন ক্ৰিয়েট কৰে যেতিয়া এখন প্লেট কি হয় আন এখনৰ তলত সোমাই যায় ৰাইট সো সেই জেগাটো কি কয় জোন অফ সাবডাকশন কয় যেনেকৈ যদি চাই সাপোজ আপুনি যদি চাই এখন প্লেট হয় ৰাইট সো সাপোজ এখন ধৰক আপোনাৰ কি হয় কন্টিনেন্টাল প্লেট সো কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্ট বুলি আমি কওঁ সো কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্টটো ইউজুৱেলি মনত ৰাখিব তাৰ থিকনেছটো কি হয় অচিনিক ক্ৰাষ্টতকৈ কি হয় বেছি হয় ঠিক আছে সো থিকনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অচিনিক ক্ৰাষ্টৰ যোনটো থিকনেছ হয় সেইটো কম হয় কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টতকৈ ডেট মিনছ ক্ৰাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই এনেকৈ মই আপোনাক ইকুৱেশ্যনৰ ফৰ্মত এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ৰাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই ক্ৰাষ্টৰ থিকনেছৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ক্ৰাষ্ট থিকনেছৰ কথা যদি চাই আমি কোনটো ঠিক হ'ব সো মনত ৰাখিব ক্ৰাষ্ট থিকনেছৰ ক্ষেত্ৰত কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট কি হয় অচিনিক ক্ৰাষ্টতকৈ বেছি ঠিক হয় কিন্তু ডেঞ্চিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই উল্টাটো হয় ঠিক আছে ডেঞ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট কি হয় কম ডেঞ্চ হয় মানে লেছ ডেঞ্চাৰ হয় অচিনিক ক্ৰাষ্ট কি হয় বেছি ডেঞ্চাৰ হয় আৰু মই তাৰ কাৰণটো কৈছোঁ বিকজ অফ দ্য এলিমেণ্টছ ডেট ইজ মেগনেছিয়াম থাকে ৰাইট সীমা বুলি কওঁ আমি আৰু কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টত কি থাকে আপোনাৰ চিয়াল থাকে সো ইমানখিনি আমি জানো অলৰেডি পঢ়িছোঁ এইবিলাক বস্তু ৰাইট আচ্ছা এতিয়া সাবডাকশন জোন অফ সাবডাকশন কোনটো কয় সাপোজ এইখন যদি আপোনালোকৰ কি হয় ধৰি লওক দুখন কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টটো হ'ব পাৰে বা অচিনিকো হ'ব পাৰে বা কণ্টিনেণ্টেলো হ'ব পাৰে বা আই মিন অচিনিক কণ্টিনেণ্টেল বা কণ্টিনেণ্টেল অচিনিক হ'ব পাৰে ঠিক আছে সাপোজ ধৰি লওক এখন অচিনিক ক্ৰাষ্টে হয় যেনিবা এতিয়া অচিনিক ক্ৰাষ্টখন কি হয় সো যদিও থিকনেছ ইয়াৰ কম হয় বাট ইট ইজ ডেঞ্চাৰ সো সদায় মনত ৰাখিব ডেঞ্চাৰ প্লেটখন কি হয় আপোনালোকৰ এখন লেছ ডেঞ্চাৰ প্লেটৰ তলত সদায় কি হয় সোমাই যায় ডেট মিনছ সাবমাৰ্জ হৈ যায় ঠিক আছে সাবডাক্ট হয় সো এই যোনটো জাগা হয় দিছ ইজ নন এজ দ্য জোন অফ সাবডাকশন ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া চাওক কনভাৰ্জেন্স আমি ক'ত হয় আমি দেখিছোঁ এইটো যেতিয়া আপোনালোকৰ কি হৈছে সো এই প্লেটখন যদি ইপিনে মুভ হৈ আছে ধৰক আৰু এই প্লেটখনো যদি ইপিনে মুভ হৈছে ডেট ইজ বা যিকোনো এখন প্লেটো যদি কি হয় মুভ কৰে এখনৰ পিনে সেইটোক কয় আপোনাৰ দুইখনো কৰিব পাৰে মুভ বা এখনো কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো যদি এখন প্লেট মুভ কৰি আছে ধৰক সাপোজ ধৰি লওক এখন ৰখি আছে আৰু এই অচিনিক প্লেটখন কি হয় ইয়াৰ তলত সোমাই গৈছে ৰাইট সাবডাক্ট কৰিছে সো দিছ ইজ নন এজ দ্য জোন অফ সাবডাকশন যোনটো আপোনালোকক ক'ত হয় কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰীত হয় ঠিক আছে এই গোটেই এণ্টায়াৰ এৰিয়াটোকে একচুৱেলি জোন অফ সাবডাকশন কয় আৰু এই লাইনডালক কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী বুলি কয় সো জোন মানে কি হয় জোনটো ডাঙৰ হ'ব অবভিয়াছলি আৰু এই বাউণ্ডাৰীটোক কয় কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী সো এতিয়া চাওক ডিপেণ্ডিং অন দ্য টাইপ অফ লিথোস্ফেৰিক প্লেট মই লিথোস্ফেয়াৰৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে লিথোস্ফেয়াৰ ক'ৰ পৰা হয় আপোনালোকৰ ক্ৰাষ্ট থাকিব ক্ৰাষ্টত যদি চাই যেনেকৈ আপোনালোকৰ এটা থাকে আপোনালোকৰ আপাৰ ক্ৰাষ্ট এটা থাকে লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট ইউ চি এল চি ঠিক আছে আপাৰ ক্ৰাষ্ট থাকিব প্ৰথমতে ওপৰত তাৰপিছত লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট আহিব ক্ৰাষ্টৰ পিছত কি আহে আপোনালোকৰ এষ্টেনোস্ফিয়াৰ আহে ৰাইট এষ্টেনোস্ফিয়াৰত যদি চাই এষ্টেনোস্ফিয়াৰ এটা লেয়াৰ হয় মাজত ৰাইট আৰু সেইটোৰ তলত কি থাকিব আপোনালোকৰ আপাৰ মেণ্টেল থাকিব তাৰপিছত তাত কি থাকে লোৱাৰ মেণ্টেল থাকে ৰাইট সো এই যে ক্ৰাষ্টৰ পৰা এষ্টেনোস্ফিয়াৰ পৰা আদি কৰি আপাৰ মেণ্টেললৈকে এই গোটেইটোকে কি কয় লিথোস্ফিয়াৰ কয় ঠিক আছে আৰু যদি চাই এই আপাৰ ক্ৰাষ্ট আৰু লোৱাৰ ক্ৰাষ্টটো যদি চাই তাত যদি আমি চাওঁ বিশেষকৈ আপাৰ ক্ৰাষ্টত আপোনালোকৰ ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকৰ দুখন প্লেট থাকে আকৌ এখনক কি কয় কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট কয় আৰু এখনক কয় অচিনিক ক্ৰাষ্ট ঠিক আছে সো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক ডিপেণ্ডিং অন দ্য টাইপ অফ লিথোস্ফেৰিক প্লেট যদি চাই লিথোস্ফেৰিক প্লেট কণ্টিনেণ্টেল প্লেটো হ'ব পাৰে অচিনিক প্লেটো হ'ব পাৰে সো কনভাৰ্জেন্স যদি আমি চাওঁ তিনি প্ৰকাৰৰ হয় ঠিক আছে যদি আপোনাৰ অচিনিক প্লেটৰ যদি বা অচিনিক ক্ৰাষ্টৰ যদি কি হয় কনভাৰ্জেন্স হয় মানে আপুনি ধৰি লওক এখন অচিনিক ক্ৰাষ্ট ঠিক আছে দুখন অচিনিক ক্ৰাষ্ট আছে
আৰু দুইখনৰ কি হ'ব থিকনেছ একে হ'ব কিন্তু কি হয় আপোনালোকৰ কিবা এটা কাৰণত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় কিছুমান অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট কি হয় এখনতকে ইখন যেনেকে অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 1 বুলি লিখিছো অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 2 বুলি লিখিছো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 1 যদি আপোনাৰ কি হয় তাৰ ডেনসিটি বেছি হয় অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 2 তকে সো ডেনসিটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ ধৰি লওক আপোনাৰ কিবা এটা কাৰণত ধৰক এখন প্লেটত কি আছে বা এখন ক্ৰাষ্টত কি আছে আপোনাৰ এখন অ'চেনিক ক্ৰাষ্টত আপোনাৰ ধৰক মেগনেছিয়াম বেছি আছে এনেকে ধৰি ল'ব পাৰে সো ইন দ্যাট কেছ কি হ'ব আপোনালোকৰ এই যোনখন অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 1 হয় এখন কি হ'ব বেছি ডেনচাৰ হ'ব কম্পেয়াৰ টু অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 2 সো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই যোনটো ক্ৰাষ্ট হয় অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 1 এইটো কি হ'ব অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট 2 তলত সাবসাইড কৰিব ঠিক আছে সো এইটো কি কয় যেতিয়া সেম থাকে আপোনালোকৰ দ্যাট মিন্স অ'চেনিক ক্ৰাষ্টৰ যেতিয়া কনভাৰ্জেন্স হয় তেতিয়া তাক কয় অ কনভাৰ্জেন্স কয় ঠিক আছে সো সেইখিনি আমি ইয়াত চাইছিলো যে আপোনালোকৰ ৰিলেটিভলি যোনখন হেভিয়াৰ অ'চেনিক প্লেট হয় সেইখন কি হ'ব এখন লাইটাৰ অ'চেনিক প্লেটৰ তলত কি হয় সাবসাইড কৰে আৰু ইয়াত যদি চাই থিকনেছ বিলাকৰ কথা যদি আমি চাওঁ ডিউ টু লেছ থিকনেছ অফ দিছ প্লেটছ ভলকেনিজমছ আৰ কমন সো এটা কথা মনত ৰাখিব অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলো কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে যে অ'চেনিক ক্ৰাষ্টৰ থিকনেছটো কি হয় ইউজুৱেলি বহুত কম হয় যেনেকৈ 5 to 30 কিলোমিটাৰ্ছক হয় খালি থিকনেছটো ঠিক আছে বাট কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টত যদি চাই থিকনেছটো এৰাউণ্ড আপোনাৰ 50 to 70 কিলোমিটাৰ্ছ হয় ডেট মিন্স কি হয় মেগমাবিলাকক যেতিয়া ওপৰলৈ আহিব লাগে সো আপুনি দেখিলেই গম পাব যে দুখন ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰত যদি চাই ডিফাৰেন্সটো অ'চেনিক ক্ৰাষ্টত যিটোকে 5 to 30 কিলোমিটাৰ্ছৰ ভিতৰতে খালি আপোনালোকৰ কি হয় থিকনেছ হয় সো আৰামছে ইয়াত মানে মেগমাবিলাক কি হয় ক্ৰাষ্টলৈ উঠি আহিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আপুনি যদি চাই ইউজুৱেলি আপোনাৰ যোনবিলাক লাভা ভলকেনো এটচেট্ৰা যোনবিলাক আছে বেছিভাগ ক'ত হয় অ'চেনিক ক্ৰাষ্টত হয় ঠিক আছে বাট কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টত থিকনেছটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে লাভাবিলাক আৰামত উঠি আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে সিহঁতে আহি পেলাই এষ্টনস্ফিয়াৰত বা তেনেকৈ মানে আপাৰ মেণ্টেলৰ পৰা লাভাখিনি আহি পেলাই এষ্টেনস্ফিয়াৰত ইয়াতে জমা হৈ যায় কিছুমান ভলকেনিক ফিচাৰ্ছ আমি চাম ইনট্ৰুচিভ ফিচাৰ্ছ বুলি কয় যোনবিলাক মানে পৃথিৱীৰ তলত হয় সেইখিনি ইনট্ৰুচিভ বুলি কয় বাহিৰত হ'লে যদি মেগমায়ে যদি ধৰক বাহিৰত কিবা ফিচাৰ বনাইছে তাক এক্সট্ৰুচিভ ফিচাৰ বুলি কয় ঠিক আছে এক্সট্ৰুচিভ আৰু ইনট্ৰুচিভ সো এক্সট্ৰুচিভ আৰু ইনট্ৰুচিভ যোনখিনি ভলকেনিক ফিচাৰ্ছ আমি এইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত চাম সেইটো বেলেগ এটা টপিক হয় বাট ইমানখিনি মনত ৰাখক এতিয়া যে আপোনালোকৰ অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট হ'লে কি হয় আৰামত উঠি আহিব পাৰে লাভাবিলাক সেইকাৰণে যদি চাই ভলকেনিজমছ আৰ ভেৰি কমন ঠিক আছে ইন দ্য অ'চেনিক কনভাৰ্জেন্স আৰু যদি ৰিলিফ ফিচাৰ্ছৰ কথা চাওঁ এই ভলকেনিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ ভলকেনিক আইলেণ্ডছ কিছুমান হয়নে যাক আমি ভলকেনিক আইলেণ্ড আৰ্ক বুলি কওঁ আৰ্ক বুলি কিয় কওঁ বিকজ আইলেণ্ডছবিলাক এনেকুৱা আৰ্ক এটা ফৰ্ম হয় ঠিক আছে এনেকৈ তলৰ পৰা যোনখিনি ভলকেনো হয় এইখিনি কি হয় মেগমাবিলাক ওপৰত আহি পেলাই সিহঁতে লাভা হয় তাৰপিছত আহি পেলাই কি হয় চেটেল ডাউন হয় ঠাণ্ডা হৈ যায় তাৰপিছত এনেকৈ জমা হয় এটা সাগৰ মানে অ'চেনিক প্লেটছবিলাকৰ ওপৰত ঠিক আছে বা য'ত জ'ন অফ কনভাৰ্জেন্স আছে আপোনালোকৰ বা জ'ন অফ ছাবডাকশ্যন হয় তাত কি হয় আপোনালোকৰ এইখিনিতে জমা হয় আৰু এই এৰিয়াবিলাকত ইউজুৱেলি আপোনালোকে এনেকুৱা ভলকেনিক আইলেণ্ড আৰ্কছবিলাক দেখা পাব এক্সাম্পল হিচাপে আপুনি কেৰিবিয়ান আইলেণ্ডছৰ কথা লিখিব পাৰে তাৰপিছত এই বিশেষকৈ যদি চাই অ'চেনিক ক্ৰাষ্টৰ যোনটো জোন হয় অফ ছাবডাকশ্যন অৰ কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী যোনটো হয় ইয়াত আপোনালোকৰ এই জেগাটো কি হয় বহুত ডিপ হয় ঠিক আছে চ' কম্পেয়াৰ টু অ'চেনিক কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট মনত ৰাখিব অ'চেনিক ক্ৰাষ্টত কি হয় আপোনালোকৰ যিহেতুকে যদি চাই থিকনেছবিলাক বহুত কম হয় সেইটো কাৰণে যদি চাই আৰু এটা ছেকেণ্ড কথা কি হয় আপোনালোকৰ ইয়াত জোন অফ ছাবডাকশ্যনত সেইটো কাৰণে আপুনি যদি চাই মানে ট্ৰেঞ্চেছখিনি ফৰ্ম হয় এতিয়া ট্ৰেঞ্চেছ চব জেগাত ফৰ্ম নহয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে ট্ৰেঞ্চেছ ক'ত ফৰ্ম হয় আপোনালোকৰ অ'চেনিক কনভাৰ্জেন্স যোনটো হয় কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰীত আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চেছখিনি পাব চ' আমি দুটা ৰিলিফ ফিচাৰ্ছ দেখা পাওঁ অ'চেনিক কনভাৰ্জেন্সৰ কাৰণে এটা হ'ল আপোনালোকৰ ভলকেনিক আইলেণ্ডৰ যোনবিলাক আৰ্ক হয় এনেকুৱা ফৰ্ম হয় নহ'লে আপোনালোকৰ ডিপ ট্ৰেঞ্চেছ কিছুমান ফৰ্ম হয় ঠিক আছে যেনেকৈ মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ আপুনি উদাহৰণ হিচাপে লিখিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট মই ইয়াত লিখিছোঁ যে অ'চেনিক প্লেটছ আৰ ডেঞ্চাৰ মই এইটো কৰিছোঁ অলৰেডি কিয় তাত সীমা আছে সীমা মানে কি হয় চিলিকন এণ্ড মেগনেছিয়াম বাট সিহঁতৰ থিকনেছ যদি চাই আপুনি কণ্টিনেণ্টেল প্লেটতকৈ কি হয় কম হয় ঠিক আছে চ' ডেঞ্চিটি বেছি হয় কিন্তু থিকনেছ কম হয় অ'চেনিক প্লেটছৰ মনত ৰাখিব কম্পেয়াৰ টু দ্য কণ্টিনেণ্টেল প্লেটছ ঠিক আছে আৰু ৰিলিফ ফিচাৰ্ছ কি ফৰ্ম হয় এইটো মনত ৰাখিব এটা হ'ল যোনখিনি ভলকেনিক আইলেণ্ড আৰ্ক বুলি কওঁ আমি সেইবিলাক ফৰ্ম হয় আৰু ডিপ ট্ৰেঞ্চেছ ফৰ্ম হয় ডিউ টু অ'চেনিক কনভাৰ্জেন্স এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো কনভাৰ্জেন্স হয় সেইটো চাম সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ অ'চেন কণ্টিনেণ্ট অৰ অ'চি কনভাৰ্জেন্স ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ এখন প্লেট মানে আপোনাৰ কি হ'ব অ'চেনিক প্লেট হ'ব অবভিয়াছলি অ'চেনিকখন কি হ'ব ডেঞ্চাৰ হয় সেইকাৰণে এইখন তললৈ যাব আৰু এখন কি থাকিব আপোনাৰ কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট থাকিব ঠিক আছে চি চ' এই অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট যোনখন হয় এইখন কি হ'ব ছাবচাইড কৰিব তলত এইটো হ'ল আপোনালোকৰ দিছ ইজ দ্য বাউণ্ডাৰী কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী আৰু এই এৰিয়াটো কি কয় জ'ন অফ ছাবডাকশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে চ' কি কৈছে হেভিয়াৰ এণ্ড ডেঞ্চাৰ যোনবিলাক অ'চেনিক প্লেট হয় সিহঁতে কি কৰিব লাইটাৰ এণ্ড যোনবিলাক লেছ ডেঞ্চাৰ কণ্টিনেণ্টেল প্লেট হয় তাৰ তলত ছাবচাইড কৰে ঠিক আছে অ'চেনিক প্লেটছবিলাক কি হয় দে আৰ কম্পেৰেটিভলি লেছ থিকাৰ অলৰেডি মই কৈছোঁৱে ইয়াৰ থিকনেছ কি হয় আপোনাৰ কম হয় চ' যদি চাই ইয়াৰ বাউণ্ডাৰীত কিছুমান ভলকেনিজম দেখা পায় বাট ইমান বেছি নহয় ঠিক আছে যেনেকৈ আমি আগতে চাইছিলোঁ অ'চেনিক থাকিলে দুইখন প্লেটেই লাইট হয় সেইকাৰণে কি হয় এক্সটেনচিভ মানে আপুনি তাত ভলকেনিজম দেখা পায় বাট অ'চেনিক যেতিয়া আপোনাৰ থাকে অ'চেনিক আৰু মানে কণ্টিনেণ্টেল থাকে তেতিয়া কি হয় তাৰ
তাৰ বাউণ্ডাৰীত ইউজুৱেলি দেখা পায় কিন্তু কম দেখা পায় ঠিক আছে চ' লিটল বিট অফ ভলকেনিজম ইজ চিন হিয়াৰ ৰিলিফ ফিচাৰ্ছ যদি আমি চাওঁ ইয়াত এনেকুৱা কনভাৰ্জেঞ্চ বাউণ্ডাৰীত কেনেকুৱা ৰিলিফ ফিচাৰ্ছ পাওঁ আমি উই গেট দ্য কণ্টিনেণ্টেল আৰ্কছ ঠিক আছে চ' এইবিলাক মনত ৰাখি ল'ব অচি কনভাৰ্জেঞ্চত আমি কণ্টিনেণ্টেল আৰ্কছ পাওঁ আৰু আমি ফ'ল্ড মাউণ্টেইনছো পাওঁ ঠিক আছে চ' কণ্টিনেণ্টেল আৰ্কছ যদি চাই আপোনালোকে এক্সাম্পলৰ হিচাপে দিব পাৰে কাস্কেড ৰেঞ্জ যোনবিলাক হয় এইবিলাক কণ্টিনেণ্টেল আৰ্কছ হয় কাস্কেড ৰেঞ্জবিলাকৰ কথা যদি চাওঁ সিহঁতে ক'ত আছে ৰকি মাউণ্টেইনছ আৰু যোনবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ চিলি ৰেঞ্জ আছে তাৰ পেৰেলেলত আছে ঠিক আছে চ' যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে মানে এনেকৈ ক'ব পাৰে যে কাস্কেড ৰেঞ্জ যোনটো হয় দিছ ইজ পেৰেলেল টু দ্য ৰকিজ আৰু কাস্কেড ৰেঞ্জ কি হয় ইটছ এন এক্সাম্পল অফ কণ্টিনেণ্টেল আৰ্ক আৰু তেনেকৈ যদি চাই আপোনালোকৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চিলি ৰেঞ্জ এইটো এটা কি হয় কণ্টিনেণ্টেল আৰ্কে হয় আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ চিলি ৰেঞ্জ কাৰ পেৰেলেলত আছে ৰকি যোনটো মাউণ্টেইন আছে ঠিক আছে so both মানে cascade range and western chili range both are continental arcs and they are parallel to the rockies ठीक है फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा फीचर क्या है आपका फोल्ड माउंटेन्स सो फोल्ड माउंटेन्स देखिए दिस इज द नेक्स्ट रिलीफ फीचर सो ये कैसे है जैसे आप एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे आपके रॉकी माउंटेन्स है कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में एंड एंडीज है आपके साउथ अमेरिका में दिस माउंटेन रेंजेस आर वन दिस आर यू कैन से एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स ठीक है लेकिन एक चीज याद रखिए हिमालयस भी फोल्ड माउंटेन्स है लेकिन हिमालय जो फॉर्म हुआ था वो टर्शियरी पीरियड में नहीं वो क्वाटरनरी पीरियड में हुआ था ठीक है सो मेसोजोइक एरा है मेसोजोइक एरा के अंदर आपको पता होगा शायद मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है एरा से छोटा होता है पीरियड राइट सो मेसोजोइक जो एरा है इसके अंदर आपके बहुत सारे पीरियड है उसमें आपके दो पीरियड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें एक है आपका टर्शियरी पीरियड और एक है क्वाटरनरी पीरियड सो जो टर्शियरी पीरियड है टर्शियरी पीरियड में आपके ये माउंटेन्स फॉर्म हुए थे मतलब जो हिमालय से ये पुराना है ठीक है सो रॉकीज माउंटेन और आपके एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली दे बिलोंग टू द दे बिलोंग टू द मेसोजोइक एरा बट पीरियड कौन से है वो टर्शियरी पीरियड से बिलोंग करते हैं ठीक है ओके यहाँ पे वही लिखा हुआ है नेक्स्ट जो कन्वर्जेंस है दिस इज द सीसी कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या होगा देखिए कॉन्टिनेंट थिक होता है थिकनेस आपको पता है लेकिन डेंसिटी कम होता है राइट सो मान लीजिए इसमें भी किसी वजह से किसी में क्या है आपका जैसे एल्यूमिनियम कम है ठीक है सो सपोज दिस इज सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 2 दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 1 सो मान लीजिए डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर CC1 का डेंसिटी क्या है CC2 से क्या है ज़्यादा है तो क्या होगा दिस कंपेरेटिवली क्योंकि इसमें थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया ये सबसाइड करेगा सो ये क्या हो गया आपका दिस इज द कन्वर्जन बाउंड्री एंड ये जोन को क्या बोलते हैं हम लोग दिस इज नोन एज अ जोन ऑफ सबडक्शन तो यहाँ पे क्या होगा कंपेरेटिवली जो लेस आई मीन डेंस सॉरी जो कंपेरेटिवली डेंसर कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा वो जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हो आप CC1 इज द डेंसर कॉन्टिनेंटल प्लेट तो ये डेंसर कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होगा इस दूसरे जो आपके लेस डेंसर कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके नीचे सबसाइड करेगा अंदर चला जाएगा ठीक है और एक चीज़ है यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है ना उनका थिकनेस बहुत ज़्यादा है मैंने बोला था 50 to 70 किलोमीटर्स होता है और इसमें एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म दिखाई नहीं देता है ठीक है कैनॉट बी विटनेस क्यों बिकॉज मैंने रीजन बोला था जैसे ओशनिक प्लेट ओसी कन्वर्जेंस हो और ओ कन्वर्जेंस हो उसमें क्या होता है आपका प्लेट्स थोड़ा ओशनिक क्रस्ट की वजह से क्या होता है उसका थिकनेस कम है इसलिए वॉल्केनिज्म होता है मतलब मैग्मा जो है ऊपर आके लावा बनता है या आप बोल सकते हो वॉल्केनिक फीचर्स दिखाई देता है बट दोनों ही प्लेट यहाँ पे अगर देखोगे CC1 CC2 बोथ आर व्हाट कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का क्या होता है आपका थिकनेस ज़्यादा होता है इसलिए क्या होता है वॉल्केनोज ऊपर नहीं मतलब मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है हमको वॉल्केनिज्म नहीं दिखाई देता है इन प्लेट्स में ठीक है तो ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म कैनॉट बी सीन इन दिस जोन्स यहाँ पे रिलीफ फीचर्स कौन से मिलेंगे जैसे हमको ओसी में भी मिला था फोल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज मिलते हैं ठीक है तो याद रखिए जैसे हमने ओशन कन्वर्जेंस में देखा था आपका जो आपके वॉल्केनिक आइलैंड जो होते हैं आर्क्स होते थे राइट और आपके ट्रेंचेस होते थे वैसे ही आप अगर देखो ओसी कन्वर्जेंस में आपको मिलता था फोल्ड माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल आर्क्स वैसे ही सीसी कन्वर्जेंस में क्या मिल रहा है हमको फोल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज मिल रहा है ठीक है सो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स जो हिमालयन माउंटेन्स है वो क्या है दे बिलोंग टू द दे हैव इमर्ज बिकॉज ऑफ द सीसी कन्वर्जेंस ठीक है और अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको मेसोजोइक एरा के अंदर हम टर्शरी पीरियड में देखा था हमने एंडीज और रॉकीज माउंटेन बना था वैसे ही मेसोजोइक एरा के अंदर जो क्वार्टरनरी पीरियड है उसमें हिमालयस बना था ठीक है सो दीज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड और प्लेट्यूज में एग्जांपल आप दे सकते हो अबाउट द टिबेटियन प्लेट्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है क्या है द हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स बिलोंग टू द क्वार्टरनरी पीरियड राइट
और अगर आपको पूछ दिया एंडीज माउंटेन दे दिया तो एंडीज एंड रॉकीज माउंटेन कब बना था, ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल ड्रैग होता है क्रिएटेड ड्यू टू द सेडिमेंटेशन ऑफ टेथिस सी इज लेस इन द हिमालयन ओसी सीसी कन्वर्जन जोन एज कम्पेयर टू द सेडिमेंटेशन रिवर्स इन द रॉकीज एंड एंडीज ओसी कन्वर्जन जोन। दस इंडियन प्लेट इज सबसाइडिंग फास्ट। ठीक है, मैं ये समझा दूंगा। पहले भी मैंने क्लास में समझाया था आपको कि देखिए मैं दो केसेस लेता हूँ, एक जो आपके रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन है, ठीक है, रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में एंड एंडीज है साउथ अमेरिका में, ठीक है, उनका प्लेट में सीसी कन्वर्जेंस दिखाता हूँ। सो उसमें क्या होता था, ये जैसे ये प्लेट है, ये इसके अंदर सबसाइड कर रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है ये प्लेट। तो इसमें क्या होता था, जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन वगैरह होता है ड्यू टू द रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे सेडिमेंट्स वो लोग छोड़ते हैं, तो क्या होता है इस पर्टिकुलर जो जोन ऑफ सबडक्शन है इसमें सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। सो इससे इससे क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स है, ये आप बोल सकते हो जो मिट्टी है, जो भी आप बोल सकते हो, रॉक्स एंड ऑल थिंग्स, दे ऑल्सो सबसाइड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो जोन ऑफ कन्वर्जेंस है इसमें क्या होगा, ड्रैग ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल ड्रैग भी बोल सकते हो। और इसके वजह से आप बोल सकते हो ये प्लेट्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे सबसाइड कर रहा है बिकॉज टू फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए वो फास्ट धस नहीं रहा है। बट इफ़ यू सी द हिमालयन केस, हिमालय में क्या होता था, हम ऐसे मानते हैं कि जो अभी हमारा ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो इंडियन प्लेट हम बोलते हैं इसको, इंडियन प्लेट, वो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और एक है आपका यूरेशियन प्लेट, राइट, वो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सो यूरेशियन प्लेट के अंदर अभी इंडियन प्लेट धस रहा है, लेकिन अभी जो रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है, वो इतना इंटेंसिव सेडिमेंटेशन इस जोन में नहीं करता है। दूसरा चीज़ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पहले एक ऐसे माना जाता है दोनों प्लेट्स के बीच एक मतलब वाटर बॉडी था जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं, ठीक है। सो टेथिस सी के हिसाब से सेडिमेंटेशन तो हुआ है बट इतना भी नहीं हुआ है कंपेयर टू द साउथ अमेरिकन रिवर्स, ठीक है। सो सेडिमेंटेशन कम है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन कम होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल ड्रैग कम है, और ये प्लेट जो है ना थोड़ा फास्ट धस रहा है इसके अंदर। सो वी आर मूविंग फास्ट, इसलिए आप देख सकते हो जितना फास्ट हम मूव करेंगे, क्या होगा, ये एरिया में क्या होगा, ये जो माउंटेन का हाइट्स है वो भी फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है। और कंपेरेटिवली इसमें अगर देखोगे, ये फोल्ड माउंटेन जो यहाँ पे फॉर्म होता है उसका हाइट कंपेरेटिवली कम होता है बिकॉज फ्रिक्शन इज मोर, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर, ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जो आपका धंसना है, दैट मीन सबसाइडेंस है, वो सबसाइडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सबसाइडेंस कम होने की वजह से जो माउंटेन का हाइट है वो भी कम है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है, इसके लिए क्या हो रहा है, आपका सबसाइडेंस ज़्यादा होगा, जल्दी धसेगा, और इसके वजह से जो माउंटेन का हाइट है वो जल्दी फास्ट राइज होता है। इसलिए आप देखोगे हिमालयस तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग। सो वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कंपेयर टू द साउथ एंड नॉर्थ अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखिए। सो वही है। फिर नेक्स्ट लास्ट में मैंने लिखा है नोट में, जोन ऑफ सब्सिडेंस इज वेरी शेलो इन सीसी कन्वर्जन। सो यहाँ पे ट्रेंचेस नहीं होता है। तो हमने क्या क्या फीचर्स देखा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। ओशन ओशन कन्वर्जेंस में जो हमने देखा था फीचर्स क्या क्या था, वी हैड द वॉल्केनिक, जो आपके आइलैंड आर्क्स होते हैं, वी आई ऐसे लिख सकते हो, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स, और दूसरा होता था ट्रेंचेस, ठीक है। जो आपके ओसी कन्वर्जेंस होता है उसमें कॉन्टिनेंटल आइलैंड आर्क्स होते थे, एंड यू गॉट द फोल्ड माउंटेन्स, राइट, फोल्ड माउंटेन्स भी होता था। यहाँ पे वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसे लार्जर देन साइन दे देता हूँ। यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है लेकिन कंपेरेटिवली कम होता है। और सीसी कन्वर्जेंस में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं यहाँ पे, और साथ में प्लेट्यूज होते हैं, राइट। इसमें वॉल्केनिज्म बिल्कुल नहीं होता है, राइट, ऑलमोस्ट नील बोल सकते हो। वाई, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। अगर समझ में थोड़ा आया होगा, अगर नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके फिर से पहले से देख लीजिए, ठीक है। सो और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि जो हिमालयस के हाइट है वो क्यों बढ़ रहा है। सो आप उसमें रीज़न दे सकते हो कि जो फोल्ड माउंटेन है हिमालयस, वो फॉर्म हुआ था रिसेंटली, मतलब मेसोजोइक एरा के क्वार्टरनरी पीरियड में फॉर्म हुआ था, डिफरेंस दे सकते हो। और रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन आपका मेसोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में फॉर्म हुआ था, राइट। सो मेसोजोइक एरा ही है दोनों का, लेकिन क्या है वो टर्शरी पीरियड में हुआ, दिस इज टर्शरी पीरियड, एंड हिमालयस मेसोजोइक एरा के अंदर जो है क्वार्टरनरी पीरियड में हुआ था। फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपके फ्रिक्शनल आप बोल सकते हो जो ड्रैग होता है, ठीक है,
सो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल ड्रैग जो होता है यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव सेडिमेंटेशन ऑफ द साउथ अमेरिकन रिवर्स एंड द नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स। यहाँ की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आपका सबसिडेंस है वो क्या है, स्लो है, और इसलिए माउंटेन का हाइट भी स्लो है। वैसे ही अगर आप हिमालयस के बारे में देखोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है या फ्रिक्शनल ड्रैग क्या है, यहाँ पे कम है। कम होने की वजह से ये प्लेट आराम से धस रहा है, सबसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है। सबडक्शन जोन में सबसाइडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेट ऑफ सबसाइडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए माउंटेन्स भी जल्दी जल्दी राइज कर रहा है, राइट। सो इसलिए आप बोल सकते हो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, और ज़्यादातर जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में वो हिमालयन माउंटेन ये रेंज में मिलता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अभी देखिए डाइवर्जेंस क्यों होता है, द हॉरिजॉन्टल लिम्स ऑफ द कन्वेंशन करंट जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर ड्रैग द प्लेट्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो जैसे आप देखो, मान लो यहाँ पे जो प्लेट्स है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो नीचे जो आपका मैग्मा चेम्बर है वो क्या करता है, कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, मैंने बोला था ना हीट डिफरेंस की वजह से क्या होता है, लावा राइज होता है, फिर कूल होता है, एंड फिर राइज होता है, ठीक है। एंड दे क्रिएट दिस कन्वेक्शन सेल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। सो ये कन्वेक्शन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, लावा ऐसे ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे ही ये जो कन्वेक्शन लावा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बोला था, जब दोनों कन्वेक्शन सेल्स, अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, एक सपोज यहाँ पे मान लो कन्वर्जेंस कब होता है, कन्वर्जेंस तब होता है जब दोनों कन्वेक्शन सेल्स का डायरेक्शन अगर ऐसा होगा, ठीक है। मतलब जो करंट है अगर वो ऐसे राइज हो रहा है, राइट, आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे अगर घूमेगा और इस डायरेक्ट, उसके पास वाली जो कन्वेक्शन सेल्स है मैग्मा का वो भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, आपका कन्वर्जेंस हो रहा है ना, कन्वर्जेंस मतलब दोनों का एक मतलब एक ही डायरेक्शन में आना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स का जो आपका डायरेक्शन है, लावा का जो फ्लो होता है उसके हिसाब से अगर देखोगे, कोई कोई ऐसा तो हमेशा नहीं होता है ना कि लावा इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है एक लावा इस तरफ जाएगा, एक लावा का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ऐसे अगर होता है तो उसके बाउंड्री में क्या होता है, वी सी डाइवर्जेंस। सो इसको ही हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते थे, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो एक फोर्स जो है ना ये क्या करेगा, प्लेट को इस तरफ मूव कराएगा, और दूसरा जो फोर्स है इस तरफ जा रहा है वो इस प्लेट को इस तरफ घुमाएगा। सो दोनों के बीच क्या होगा, एक फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। एक मतलब आप बोल सकते हो एक गड्ढा जैसा, राइट। सो द फॉलिंग लिम्स ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स क्रिएटेड नेगेटिव प्रेशर ऑन द लिथोस्फीयर, एंड द नेगेटिव प्रेशर और पुलिंग फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कन्वर्जन बाउंड्री। द राइजिंग लिम्स जो होता है ना, अदर हैंड, देखिए अभी क्या होता है, आई एम टेलिंग यू, राइजिंग लिम्स क्या करता है, इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव प्रेशर ऑन द लिथोस्फीयर, एंड दिस पॉजिटिव प्रेशर दैट इज अ पुशिंग फोर्स क्रिएट्स ए डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो दोनों को यहाँ पे ही समझा देता हूँ, जो फॉलिंग लिम्स जो होता है, राइट, यहाँ पे जो फॉलिंग लिम्स है, फॉलिंग लिम्स मतलब ये वाला, क्योंकि ये जो है लिम्ब आप मान सकते हो, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला, दिस इज ये कन्वेक्शन सेल का फॉलिंग लिम्ब है, ठीक है, ये क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज द फॉलिंग लिम्ब, दिस इज द राइजिंग लिम्ब, राइट। यहाँ पे ये वाला राइजिंग लिम्ब हो गया, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंस की बात करें हम लोग, दोनों को समझ लेते हैं तब इजी होगा, एंड दिस इज डाइवर्जेंस। सो इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस में जो फॉलिंग लिम्स होते हैं ना, ये फॉलिंग लिम्स की वजह से क्या होता है, एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा ऑन द लिथोस्फीयर, और इसकी वजह से क्या होगा, जो निगेटिव पुलिंग फोर्सेस है, ये इस तरफ से पुल करेगा, ये इस तरफ से पुल करेगा, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, यू गेट द कन्वर्जन बाउंड्री। बट इन केस ऑफ इफ यू सी हियर, ये क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्यों होता है, देखिए ये क्या है, राइजिंग लिम्स होता है, ये वाले सेल का और ये वाले सेल का, ये दोनों क्या है, राइजिंग लिम्ब है। ये दोनों राइजिंग लिम्ब क्या करेगा, राइजिंग लिम्ब विल क्रिएट ए पॉजिटिव प्रेशर ऑन द लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये जो राइजिंग लिम्ब है, इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड इट विल क्रिएट ए पुशिंग फोर्स, ये दोनों तरफ इस तरफ पुश करेगा प्लेट को, एक इस तरफ पुश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट द डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो बहुत ईजी है समझने के लिए। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो फॉलिंग लिम्ब है वो आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, दैट इज एक पुलिंग फोर्स होगा, दोनों सरफेस को एक तरफ मतलब पुल करेगा। और डाइवर्जेंस जो बाउंड्री होता है उसमें क्या होता है, जो आपके मैग्मा का जो आपके मतलब राइजिंग लिम्ब होते हैं, ये वाला जो इस हिस्सा को आप राइजिंग लिम्ब बोल सकते हो, ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे लिथोस्फीयर में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्लेट को इस तरफ मूव करने के लिए, दैट मीन्स क्या होगा, पुशिंग फोर्स देगा, ठीक है। एक क्या करता है, पुल कर रहा है यहाँ पे, ऐसे याद रख लो,
यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, पुश करने की वजह से क्या होगा, ये इस तरफ पुश होगा, ये इस तरफ पुश होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। सो अभी देखिए डाइवर्जेंस जो आपके बाउंड्री होते हैं, डाइवर्जेंस बाउंड्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू सीज एंड ओशंस, ठीक है। जैसे आप मान लो ये प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सो यहाँ पे ऊपर पानी है, वाटर बॉडी है, यहाँ पे जब मतलब गड्ढा ऐसे हो जाएगा, राइट, फॉल क्रिएट होगा, तो इससे क्या होगा, आपका अलग अलग चीज़ें बन सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो यू कैन गेट सम न्यू ओशंस एंड सीज, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, सो याद रखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री में हमको नए ओशंस या सीज मिलेंगे, डीप ओशंस और सीज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक डाइवर्जेंस की वजह से क्या होगा, एक नया फीचर बन सकता है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर ऊपर पानी ना भी हो तब भी यहाँ पे बारिश वगैरह होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जगह बहुत बड़ा हो जाएगा ना एक टाइम पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पानी वगैरह जब बारिश होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इट में क्रिएट ए ओशन और न्यू सी, ठीक है, ऐसे ही बनता है। और कन्वर्जन बाउंड्री में हमने देखा था अलग अलग फीचर्स, जैसे फोल्ड माउंटेन्स बनता था, वॉल्केनिक आर्क्स, कॉन्टिनेंटल आर्क्स था, रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट लेक्स, ठीक है, और प्लेट्यूज वगैरह बनता था, बट डाइवर्जेंस की वजह से ओशन वगैरह या न्यू सीज बनता है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे बनता है। सो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से आपका रिफ्ट वैली, रिफ्ट लेक्स, सीज, ओशंस, ये सब बनता है, ठीक है। सो स्टेज वन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको वार्पिंग बोलते हैं, वार्पिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो इनिशियली क्या होगा, ये जो आपके यहाँ पे जो फोर्सेस नीचे से जो मैग्मा है, एक कन्वेक्शन सेल क्या हो रहा है, इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है ना, सो ये जो राइजिंग लिम है, दिस इज द राइजिंग लिम, राइट, यहाँ पे जैसे हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री में यहाँ पे देखा था, यही चीज़ है, ठीक है, राइजिंग लिम। सो यहाँ पे जो राइजिंग लिम है, एक कन्वेक्शन सेल ऐसा है, दूसरा कन्वेक्शन सेल ऐसा है, आप ऐसे मान लो, राइट। सो यहाँ पे आप मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो राइजिंग लिम्ब है और ये राइजिंग लिम्ब है, इट विल क्रिएट अ प्रेशर हियर, और ये प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो ये क्या करेगा, इट विल पुश द क्रस्ट इन बोथ द साइड्स, राइट। स्टेज टू में क्या होगा, इट विल फर्स्ट ये जो क्रस्ट क्या होगा, बीच में ऐसे फट जाएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा एक साइड, इस तरफ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट अ रिफ्ट वैली, इसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ ए रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये जो जगह खाली हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा, बारिश वगैरह होगा, पानी वगैरह जो है यहाँ पे, अगर सागर आई मीन सॉरी कोई वाटर बॉडीज है या जैसे लेक्स वगैरह है, तो यहाँ पे रिवर्स वगैरह है, तो यहाँ पे अगर पानी आते आते क्या हो गया, ये रिफ्ट वैली में जमा होगा, सो ये क्या होगा, इट विल बिकम अ नैरो सी, ठीक है। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो रेड सी, रेड सी ऐसे ही बना था। फिर क्या होगा, ये फर्दर क्या होगा, ऐसे अगर सेपरेट होते गया, दूर होते गया, तो ये इसका साइज जो है ना धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, राइट, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ओशन। सो पहले वो नैरो सी बनता था, उसके बाद और जब दूर जाते रहेगा ये लैंड मासेस, ठीक है, ड्यू टू दिस डाइवर्जेंस, सो इसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट द ओशन, राइट। सो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड मिड ओशनिक रिच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर एक्टिव क्रस्ट फॉर्मेशन और मेजर ओशंस आर एट दिस स्टेज, अभी जितने भी मेजर ओशंस है दुनिया में सारे ऐसे ही बने थे, ठीक है। सो याद रखिए आपको पहले क्या होता है डाइवर्जेंस बाउंड्री में, फर्स्ट यू गेट द डाइवर्जेंस, देन यू गेट द रिफ्ट वैली, ठीक है, या रिफ्ट वैली आप बोल सकते हो। उसके बाद जब पानी जमा होगा इसको रिफ्ट लेक बोलेंगे, रिफ्ट लेक बोलेंगे। फिर थोड़ा पानी अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, और ये डाइवर्जेंस भी थोड़ा और ज़्यादा हो गया, मतलब ये गैप जो है ना और अगर ऐसे फैल गया, देन इट विल बिकम अ नैरो सी। फिर ये अगर बढ़ते जाएगा, देन इट विल बिकम अ ओशन, ओके। सो ऐसे ही होता है, ठीक है, प्रोसेस डाइवर्जेंस का। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे दिस इज रिफ्ट वैली जो है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पे यू कैन सी है। सो ये अफ्रीकन प्लेट है, राइट, इसको नूबियन प्लेट भी बोलते हैं, ये अरेबियन प्लेट है। सो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, सो इन दोनों प्लेट्स के बीच हो रहा है डाइवर्जेंस। सो ये डाइवर्जेंस होने की वजह से क्या हो गया, यू कैन सी हियर कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट। सो इट हैज क्रिएट, पहले ये वो कैसा था, इट क्रिएटेड ए रिफ्ट वैली। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आसपास के जो ओशंस थे वहाँ से पानी आ गए, देन इट बिकम अ यू कैन से एक नैरो सी बोलते हैं इसको, रेड सी जिसका नाम है, ठीक है। वैसे ही और एक यहाँ पे देख सकते हो आप, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट अभी फॉर्म हुआ है, ये भी धीरे धीरे ये फैलते जाएगा,
राइट, क्योंकि ये लैंड मासेस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका जो साइज है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर भी ये भी नैरो सी बन जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। सो ये ऐसे ही होता है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको मैं ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। सो दिस इज द गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ। ये जो पार्ट है आपका, दिस इज द, इसको बोलते हैं एल्बर्टाइन रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, केनिया के पास है। ये कैसे फॉर्म हुआ है देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कैनियन रिफ्ट है, एल्बिनियन रिफ्ट है, देन वैली ऑफ मलावी है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिफ्ट के वजह से क्या हो रहा है, ये जो लैंड मासेस है ना एक दूसरे से दूर होती जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस क्रैक्स के अंदर से ये पानी जमा हो रहा है, या आसपास के कोई अगर चैनल्स वगैरह, तो इसमें पानी जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज क्रिएटिंग अ, यू कैन से दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ रिफ्ट वैली, एंड बाद में ये नैरो सी भी बन जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। सो रिफ्ट वैली आप देख सकते हो अफ्रीका में, जैसे यहाँ पे आप ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा होगा, नूबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच रेड सी है, इज ए रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो है यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो, ये आप बोल सकते हो इट्स फॉर्म बिटवीन द सोमालियन प्लेट एंड द नूबियन प्लेट। सो ये जो है सोमालियन प्लेट का पार्ट है, राइट, दिस इज द सोमालियन प्लेट, आप बोल सकते हो ये पूरा है, राइट। सो ये सोमालियन प्लेट है, ये आपका नूबियन प्लेट है। सो सोमालियन एंड नूबियन प्लेट के बीच आप जो आई मीन रिफ वैली फॉर्म हुआ है, दिस इज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ वैली। और बाद में ये अगर रिफ वैली से, ये वाला जगह पहले रिफ वैली था, बाद में क्या हुआ, इट बिकेम ए नैरो सी। ये किसके अंदर मतलब बीच बना है, बिटवीन द नूबियन प्लेट एंड द अरेबियन प्लेट, ठीक है। सो इसको याद रखिए। सो इसका समरी आज देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। वी हैड ऑलरेडी सीन द कन्वर्जेंस पार्ट। डाइवर्जेंस में हमने देखा था जो फॉलिंग लिम्स होता है, फॉलिंग लिम्स की वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव पुलिंग फोर्स, एंड इसकी वजह से कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस किस लिए होता था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। दो कन्वेक्टिव सेल्स आप मान लीजिए क्रस्ट के नीचे, ठीक है। सो एक में क्या हो रहा है, आपका जो कन्वेक्शन करंट का डायरेक्शन है ऐसा है। सो अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो इससे क्या हो रहा है, जो क्रस्ट है इसके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर बन रहा है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग पुल्ड, ओके। सो दिस इज द कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस में क्या होता है, जस्ट द ऑपोजिट। सो सपोज आप मान लो यहाँ पे दो कन्वेक्टिव सेल्स है, एक कन्वेक्टिव सेल्स जो है, और ये याद रखिए हमेशा जो आपके मतलब कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस में क्या होता है आपका जो आई मीन सेल्स होता है ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। और इस डाइवर्जेंस में क्या होता है, और ये याद रखिए फॉलिंग लिम्स की वजह से हो रहा है, ये फॉल हो रहा है ना, नीचे जा रहा है इसलिए। राइजिंग लिम्स में ऐसा होता है, ये ऊपर राइज कर रहा है, ये ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर दोनों सेल्स का डायरेक्शन है तो कैसा होगा, ये जो आपके राइजिंग लिम्स है यहाँ पे, क्योंकि जोन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे है इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी, सॉरी, दिस इज जोन ऑफ डाइवर्जेंस सरफेस में, और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे जोन ऑफ कन्वर्जेंस है। सो आप सोच सकते हो ना कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, ये जगह पे क्यों नहीं लिया। रीजन इसलिए है बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, राइट। और ये पॉइंट अगर देखोगे, इसके लिए ये जो राइजिंग लिम्ब है ये रेस्पॉन्सिबल है, और ये पॉइंट में जो कन्वर्जेंस हो रहा है, ये फॉलिंग लिम्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नॉट दिस पार्ट। सो यहाँ पे इसलिए जोन ऑफ कन्वर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस किस लिए बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस है, कन्वेक्शन डायरेक्शन के जो करेंट्स है, वो एक फोर्स क्रिएट करेगा जो एक तरफ क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, राइट, इस तरफ इस तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक साइड में अगर देखोगे ये इस तरफ जाएगा फोर्स, और एक फोर्स इस तरफ होगा, राइट, टेंजेंशियल फोर्सेस। सो इससे क्या होगा, एक फॉल्ट क्रिएट होगा, रिफ्ट वैली क्रिएट होगा, फिर रिफ्ट लिफ्ट होगा। फिर हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस में हमने क्या क्या देखा था, पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होता है आपका, इट विल क्रिएट ए रिफ्ट वैली, उसके बाद यहाँ पे पानी जमा होगा, इट विल बिकम अ रिफ्ट लेक। उसके बाद ये क्या होता है, नैरो सी बन जाता है थोड़ा पानी, और ये फैलता जाएगा, जितना नैरो सी बनेगा और जितना फैलेगा वो, उससे क्या होगा, वो एक ओपन सी बन जाएगा या ओशन बन जाएगा, ठीक है। सो इतना ही था आज का ये वाला क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है, इसमें हम लोग जो आपके बाकी पार्ट है सारे कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ज्योग्राफी जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, टेक्निकल है समझने के लिए, बट इजी होता है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है, आई विल ब्रिंग ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दैट इज फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। तो ये समझने के लिए आसानी होगा, क्योंकि हमको अभी पता चल गया है फोल्ड और फॉल्ट किस लिए बनता है। फोल्ड माउंटेन्स हमने देखा था कॉन्वर्जेंस बाउंड्री में बनता है, फॉल्ट्स जो होता है वो, या ब्लॉक माउंटेन जो होता है वो डाइवर्जेंस बाउंड्री में होता है, राइट। सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।